honorable guest, I, Ananya Das from Gautam Budh Nagar. I believe in a religion that teaches us equality, liberty, and unity. Today, we come together not just to remember the adoption of our constitution, but to renew the 11th Sankalp we took on Samvidhan Divas. Once Dr. B.R. Ambedkar said, our constitution is not just a document, it is the foundation of our dreams, hope, and values. We, as Indians, forgot our nation. Don't we want our India to be a thriving nation? These 11 Sankalp are not just pledges, they are the living, breathing manifestation of our culture. What are these 11 Sankalps? First, everyone must perform their duties. Second, every region and every society should get the benefit of development. Third, zero tolerance towards corruption. Fourth, we as citizens of India must be proud of our culture and tradition. Fifth, to get rid of the mentality of slavery. Britishers have left us long ago. Why are we still living in their shadow? We need to break through it by empowering ourselves through education. Sixth, India should be free from nepotism. Seventh, no reservation on the basis of religion. Everyone should get equal and fair opportunities. Eighth, our constitution should not be a weapon. Instead, it should be a reincarnation of success. Ninth, India must focus on women-led development, empowering women, empowering India. Beti Bachao, Beti Padhao. 10th, development of state should lead to development of nation. Last but not the least, promoting a motto of Viksit, of Ek Bharat, Shresth Bharat. One India, one nation. Our strength lies in unity. Each of these 11 Sankalp are not just pledges. In fact, it's a call of our duty as the youth. We can bring the change in India today, the change that India wants. A Viksit Bharat, a developed India, and a stronger constitution. Unity is strength. Division is weakness. It's time for us to act now. And the change we will bring by changing ourselves, by taking these pledges today. With this, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. हमारे अगले प्रतिभागी हैं वेदांत व्यास। जिस भूमि में राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जिस भूमि में गौतम की वाणी गूंजी थी और जिस भूमि में रानी अपना स्वतंत्र के समा में कूदी थी और जिस भूमि में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, उस भूमि में मैं वेदांत व्यास आपको गौतम बुद्ध नगर से प्रणाम करता हूं। एकता, अखंडता और समृद्धता का मैं आधार हूं। मैं मौलिक अधिकारों को नई दिशा में डालने वाला संस्कार हूं और मैं उन्नति के हर अध्याय का सार हूं। मैं भारत का संविधान हूं। Greetings, ladies and gentlemen. It has been 75 years since we have become republic, and it has been a wonderful journey from social hierarchy to leading and empowering a woman, a tribal woman, to a president, from shadows of colonialism to the heights of the space of exploration with the Chandrayaan and Gaganyaan, from struggling to provide the basic education to empowering and revolutionizing India to digital India and NEP 2020. We have come a long way. और ये सिर्फ सफर नहीं था, ये संघर्ष था जिसने भारत को नए शिखर तक ले गया।
Ladies and gentlemen, 75 years ago, India embraced a constitution that is not merely a legal document but a visionary charter, the one that lead and give the foundation of liberty, justice and equality. But, ladies and gentlemen, in this journey, I believe there are three phases: the past 75 years, the coming future, the present, and the coming future. In the past 75 years, we have witnessed lots of milestones from assertion of the fundamental duties from Keshwananda Bharati to the social justice waves by the Mandal Commission. The present, where India stands tall at the world's largest democracy, but faces pressing challenges. But, ladies and gentlemen, I believe the real responsibility and the real transformation lies not in the policies, but in the perspective, where every citizen, where Viksit Bharat is built by not built by the government alone. It will be built when we, the citizens, rise above the entitlement and embrace responsibility, when we stop asking what nation is doing for me and start asking what I am doing for my nation, when we think twice before pelting stone at the trains, just like on the Mahakumbh, when we keep our environment clean, when we keep our surrounding clean, and when we prioritize skills and value equally, this is when the real transformation begins, ladies and gentlemen. The Constitution is only there to guide us, but we are here. Coming up next is Kashavi Dikshit. रास्ते बनाने से पहले, नए कदम उठाने से पहले जरा पलट कर देखो जो लिखा था जमाने से पहले। संविधान की हर धुन में एक सपना बसा है, जो विकसित भारत का रथ है वो हम में ही बसा है। About 75 years ago, our constitution makers did not just define a document. They crafted a vision, choosing policy over power to define our process, unity over division to define our character, and duty over dominion to define who we truly are. But what saddens me is that even after 75 years, through Viksit Bharat, we aim to breathe life into the ideals which should actually have been existing since a long time. Now imagine, rights, duties and progress were always meant to go hand in hand, wherein the constitution was to give us rights, citizens and government were to perform duties, and together they were to drive progress. However, how can we expect duties from those who have never actualized rights in the first place? Imagine 1.2 million children deprived of education and about 30% of population deprived of health care. Can we expect them to fulfill duties when survival itself is a battle for them? On the other hand, however, exist people who enjoy every potential privilege, yet they fail to perform their duties as Indians. This is due to lack of consciousness, which can only be built by the ideal of Sabka Saath, Sabka Vikas. This will ensure that every citizen is feel respected, valued, and made to feel that they are truly an important part of nation's progress. This will ensure that a sense of belongingness occurs, and ultimately, duties will no more feel like commitments, but will feel more natural. Let's be honest, India has always had the rights and the duties. Yet we have failed because the promises have remained unfulfilled, the education has never empowered, and ultimately the opportunities have never reached those who needed them the most. But today, fortunately, we have a government which ensures that reform, transform and perform are not mere ideals but commitment. Commitment to an India which ensures that equality is more than an ideal, where Swachh Bharat is not just a mission but a mindset, and where patriotism is more than a mere social media post on 15th August. About 100 years from now, when the next generation looks back, let there be no regret but gratitude. Gratitude for a Bharat which was based on three pillars: fearlessness among citizens, openness in governance, and empowerment of all. The very commitment that we have discussed about today is best personified in the words of Atal Bihari Vajpayee, wherein he clearly mentions कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी और आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू।
हमारे अगले प्रतिभागी हैं अनिरुद्ध त्यागी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या हमारा देश भारत विकसित हो सकता है? क्या कभी सोचा है? क्या कभी सोचा है वो क्या मापदंड हैं जिनके बुनियाद पे हमारा भारत विकसित होगा? वो मापदंड हैं संविधान दिवस के 11 संकल्प। क्योंकि वो संविधान संकल्प की प्रासंगिकता हमारे विकसित भारत के भविष्य की बुनियाद रखेंगे। फिर चाहे वो अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा था सुबह से यहां पे एक बात करी जा रही थी कर्तव्यों की। पहला हमारा संकल्प भी कर्तव्यों का है। सरकार हो या नागरिक, सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। क्या ऐसा हो रहा है? जी हां, ऐसा हो रहा है। इस देश के बजट में जब माननीय निर्मला सीतारमण जी ने देश की संसद में खड़े होकर के कहा कि 21,000 करोड़ से ज्यादा का आयकर देश की जनता ने देश के खजाने में दिया, तो वहीं 1.15 करोड़ लोगों ने एलपीजी की सब्सिडी भी छोड़ दी। यह है देश के प्रति देश के लोगों का कर्तव्य। और वहीं दूसरी ओर हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया समान नागरिक संहिता का वो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा वो सिद्धांत आज उत्तराखंड में एक साक्षात है। हम इस बात को भी जानते हैं कि हर वर्ग का विकास विकसित भारत की बुनियाद है। फिर चाहे वो हमारे दिव्यांगजन हो। अध्यक्ष महोदय, 2016 में दिव्यांगजनों के अधिकार का संरक्षण अधिनियम हमारी संसद ने पारित करा और अभी कुछ दिन पहले इसी सदन ने 145 करोड़ का बजट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी दिया। एक हमारा मिशन राष्ट्रीय मधुमक्खी मिशन चल रहा है, जिसके अंदर मिशन शहद नाम से हम इस वर्ग का भी उत्थान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी हमारे इस देश की आज बुनियाद रख रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम इस बात को भी जानते हैं कि विकसित भारत का युवा न भ्रष्टाचारियों को सहेगा न भ्रष्टाचार को सहेगा। बेनामी संपत्ति कानून 2016 का संशोधन इस बात की गवाही देता है। या फिर पीएमएलए का वो कानून हो जिसने भ्रष्टाचारियों के दांतों तले उंगलियां चबा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारा देश आज अगर कर्तव्य पथ की बात करता है तो मेरे देश की संसद में रखा सेंगोल भी हमें हमारी सनातन भारतीय परंपरा की याद दिलाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद, जिसमें हमने ड्रोन से लेकर के या फिर जिसमें हमने भारत की विकास यात्रा को काशी तमिल संगमम की बुनियाद पे आगे रखा हो, ये सब दिखाते हैं कि मेरा भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Coming up next is Harshita Sharma. देश की जहां हर मत की पहचान है। मैं युवा हूं उस देश की जहां विकास की उड़ान है। मैं युवा हूं उस देश की जहां न्याय का विधान है। मैं युवा हूं उस देश की जहां संविधान सबसे महान है। Greetings everyone, myself Harshita. I would like to thank the Honorable dignitaries for giving me this opportunity to speak on the topic 75 years of Constitution, a journey of rights, duties and progress. Ladies and gentlemen, 75 years ago, India chose its destiny. Not through kings, not through force, but through Constitution. A book that is written by the sweat of our leaders. A book that is written by the blood of our revolutionaries. A book that is written for the dream of 1.45 billion Indians. Today, looking at this topic, I see three aspects: rights, duties, and progress. No caste, no religion, only the law stand above us. This is the right equality. Knowledge should reach the last child of the last village. This is the right to education. To speak, to create, to challenge, this is the right to freedom. But my question to you all is, do we protect the rights of others as much as we demand ours?
Today, standing here, I ask you all, we want justice, but do we stand against injustice? I ask you all, we want quality of life, but do we think twice before throwing that plastic on road? I ask you all, we want economic growth, but do we pay our taxes honestly? As the citizen of this country, when I hear the recent cases like the Humpy rape case, like the Atul Subhash case, like the Nagpur violence case, it makes me think, are we failed as a society? Ladies and gentlemen, a strong nation is built by responsible citizens, not just laws. Yes, the 75 years of our constitution is also the journey of progress. Today, India is the world's 5th largest economy, and by the year 2028 will become the 3rd largest economy. From Chandrayaan success to the rise of unicorn startups, from 6.2% GDP growth last quarter to winning the ICC Champions Trophy this year, India is making remarkable progress. But especially I want to address the youth present here and remind you all that we have to progress, but never forget our roots. Our constitution, Article 1, Line 1 says, India, that is Bharat. This word Bharat, it symbolizes our country's rich culture, rich heritage, which one should be proud of. Coming to the end, I would like to quote the lines of Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar. He says, संविधान कोई कागज का दस्तावेज नहीं है, ये अपने आप में जीवन जीने का एक तरीका है. Yes, Constitution is the foundation of our nation, but now it's on us how we use it to build a stronger India. Jai Hind, Jai Bharat. Now I would like to call Shivam. The words of Franklin, I quote, "You cannot always build future for our youth, but we can build our youth for the future with the right duties and progress," and I unquote. Greetings, ladies and gentlemen. This is Shivam Nodal, Gautam Budh Nagar, and it is an immense privilege for me to stand here today to discuss on a transformative concept that is 75 years of Indian Constitution, the journey of right, duties, and progress. Ladies and gentlemen, 75 years ago, the midnight toils talked with India. We are not just born with the freedom, but with the living document that is our Constitution, with the guiding light shaped with the wisdom of past, realities of present, and the future of aspiration. Ladies and gentlemen, today, when I can inculcate this topic, I see 3 features. What is the role of youth on this sustainable future, on this journey? How is the role we can define the ancient times of Rig Veda, Samveda, and Bhagavad Gita, and how can we connect both of these together? Ladies and gentlemen, back then 75 years ago, till our journey, we have faced many challenges, but India rises. From being an independent nation to the 5th largest economy, from being a discrimination to the stronger democracy, from being illiteracy, we have come forward to the digital liberalization. Ladies and gentlemen, we have not merely moved forward, we have evolved. And let me tell you, let us not forget our roots. As Dr. B.R. Ambedkar, founding father of our Constitution, have not just crafting laws, he was crafting the ideas of ancient India from Rig Veda, Samveda, and Bhagavad Gita. Ladies and gentlemen, from Dharma to democracy, from Chandragupta Maurya Emperor to the Vikramaditya Emperor, we have inculcated duties, right, and progress from our ancient times. He echoed the message of Lord Krishna from the Gita to the Arjuna. Swadharme Shreya Pradharam Bhavya. It is better to perish one's own duty than to focus on another and invite the destruction. Ladies and gentlemen, today I would like to ask you that in order to attain the sustainable future, have we inculcate kartavya towards our Constitution? We demand rights, but do we uphold duties? We demand justice, but do we uphold truth? We demand progress, but do we uphold embrace sacrifices? Ladies and gentlemen, unfortunately, I would like to say that we are busy on fighting with the random Instagram influencer rather than keep busy and following the right duties and progress of our India.
Ladies and gentlemen, we have to understand how can we inculcate that rights of fundamental duties and fundamental rights go in hand. Here I would like to say my end. Thank you very much. Next, I would like to call Sushma, who is last candidate of Gautam Buddha Nagar. कि राष्ट्र का संज्ञान लेकर कुछ लिख कर मैं लाई हूँ, संविधान के 75 वर्ष में आज बताने आई हूँ। कि राष्ट्र का संज्ञान लेकर कुछ लिख कर मैं लाई हूँ, संविधान के 75 वर्ष में आज बताने आई हूँ। कि जैसे लहराता तिरंगा आसमान पर इस देश की शान है, कि जैसे लहराता तिरंगा आसमान पर इस देश की शान है। इस देश की प्रगति का कारण केवल हमारा संविधान है, केवल हमारा संविधान है। अवध की शान और तहजीब की पहचान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा में उपस्थित ईश्वर तुल्य निर्णायक मंडल व विकसित भारत की सोच को अपने हृदय में समाहित उत्तर प्रदेश के कोने कोने से युवा शक्ति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी बागपत का हृदय से सप्रेम नमस्कार। महोदय, मेरा आज का विषय है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा। महोदय, मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहती हूँ कि यह उत्सव केवल एक संवैधानिक उत्सव नहीं है। यह उत्सव है भारत की लोकतंत्रात्मक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति का। यह वह क्षण है जहां हम अपने अधिकारों को जानते हैं और हम अपने कर्तव्य की जिम्मेदारियों से स्वयं को संवाद करते हैं। महोदय, यह वह क्षण है जहां हम अपने अतीत पर विचार करते हैं, अपने वर्तमान को समझते हैं और अपने भविष्य के आगे बढ़ते हैं। महोदय, भारतीय संविधान तो वह संविधान है कि जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, बोलियां, ऊंच नीच, खान पान को समाहित किया जाता है। भारतीय संविधान वह संविधान है जो हमें सदैव नई दिशा की ओर अग्रसर करता है, नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का साहस देता है। लेकिन महोदय, क्या केवल आज इस सभा में उपलब्धियों पर चर्चा करना उचित होगा? हमें चर्चा करनी चाहिए उन बिंदुओं पर जो कहीं न कहीं आज भी भारत की विकास यात्रा के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। महोदय, आए दिन अखबार में पढ़ती हुई खबरों से मेरा तो हृदय ही बाहर आ जाता है कि इस प्रकार से भारत के इतने गौरवमय पल पर भारत के कुछ लोगों की मानसिकता ने धूमिल कर रखा है। मेरा तो हृदय ही बाहर आ जाता है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए स्वयं द्वारा रचित चंद पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ कि 75 वर्ष हुए संविधान को फिर भी सोच गुलाम है। कि 75 वर्ष हुए संविधान को फिर भी सोच गुलाम है। घूम रहे हैवानी दरिंदे, जिंदा बैठा शैतान है और मजहबी सोच को बढ़ावा देती है भारत की आवाम है और बंटवारे से बना हुआ ये प्यारा हिंदुस्तान है। ये टूटा बिखरा भारत है, कैसे इस पर अभिमान करें? कि ये टूटा बिखरा भारत है, कैसे इस पर अभिमान करें? संविधान के नियम से चलो इनका सम्मान करें। कि अभी समय है, आओ मिल कर्तव्य की पहचान करें। कि अभी समय है, आओ मिल कर्तव्य की पहचान करें। भारत की नव पीढ़ी मिल नव भारत का निर्माण करे, नव भारत का निर्माण करे। महोदय, यदि बात भारत के विकास की हो या फिर 75 वर्ष की हमारी प्रगति यात्रा की, जब तक युवा शक्ति एक साथ नहीं आती, ना तो यह संभव हो सकता था और ना ही भारत का विकास संभव हो सकता है। यदि युवा शक्ति एक साथ मिलकर के प्रयास करेगी, तभी भारत का विकास संभव हो सकता है। और युवा शक्ति के हृदय में समाहित भावना को आप लोगों के समक्ष अपनी अंतिम चंद पंक्तियों के माध्यम से रखते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी कि सरफराशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो कितना बाजुए कातिल है। Now we are starting up with Gorakhpur and I would like to invite Sara Khan. वंद कहाँ तक पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आदरणीय निर्णायक मंडल तथा सभा में उपस्थित सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं सारा खान नोडल डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से तथा एवं महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण धरती कुशीनगर का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु उपस्थित हूँ। महोदय, मैं संविधान की बात करने से पहले माननीय अंबेडकर की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं संविधान को आगे बढ़ाऊंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान लिखा है। बाबा साहब ने इन सब को छोड़ करके भारत का संविधान लिखा है, भारत का संविधान लिखा है। महोदय, हमारे
हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, संविधान की सफलता केवल इस बात पर निर्भर करती है कि इसके लागू करने वाले कितने निष्ठावान हैं। महोदय, हमारा संविधान भारत विश्व में प्रथम, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान है, जो विस्तृत संविधान एवं जीवन संविधान है। महोदय, हमारा संविधान सन 1789 ईस्वी में सन 1789 ईस्वी के एक अध्ययन के अनुसार एक लिखित संविधान का जीवन काल केवल 17 वर्ष होता है। महोदय, यदि कोई तो बात है हमारे संविधान की भाषा में, जो 75 वर्षों से लगातार भारत के लोकतंत्र का आधार बना हुआ है और हम सबको एक देश की तरह जोड़ता है। महोदय, हमारा संविधान कहता है कि हमारा संविधान कहता है कि हमारा संविधान कहता है कि मैं तुम्हारे तकलीफों का एक मुकम्मल किताब हूँ, मैं तुम्हारे मुकम्मल तकलीफों का एक किताब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। महोदय, हमारे संविधान में 4 मौलिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की बात की गई है। महोदय, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ समन्वय हो या भाग 9 के अंतर्गत पंचायत सिस्टम को लागू करना हो। महोदय, संविधान में इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। महोदय, महिला संरक्षण अधिनियम हो या डिजिटल इंडिया, शिक्षा का अधिकार हो या नई शिक्षा नीति, अनुच्छेद 226 हो या 32, सन 1965, 71, 75 का आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन। महोदय, क्षेत्रीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रत्येक कर्तव्यों एवं अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। महोदय, भारत की प्रगति Next, huh? Yes. Next up, we have Harsh Lat. Harshi. Harsh Lat. Next. Next is Gaurav Ojha. बाबा गोरक्षनाथ के आंगन गोरखपुर के प्रतिनिधित्व की बड़ी जिम्मेदारी अपने छोटे से कंधे पर लिए मैं गौरव ओझा सुधार्थी आप सबको नमन करता हूं। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक कर तलवारों की रणगान बनाया है और लहू बहाकर रखी थी आजादी की नींव, यहां बलिदानों की बुनियाद पर संविधान बनाया है। महोदय, सन 1947 जब भारत अपने अस्तित्व को तराश रहा था, तब चर्चिल और माउंटबेटन के गलियारों से यह प्रश्न पूछे जाते थे कि यह देश अपनी खोखली आजादी को कितने दिन तक संजो कर रख पाएगा। मगर तभी भारत अपनी प्राचीन लोकतांत्रिक चेतना को जागृत करते हुए एक बार पुनः एक ऐसा संविधान रचा जिस पर सैकड़ों नोबेल पुरस्कार न्यौछावर किए जा सकते हैं। महोदय, भारत के स्वर्णिम 75 वर्षों को इसके अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति को अलग अलग संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। इन्हीं लोकतांत्रिक आधार पर वर्षों से चली आ रही जाति धर्म के बंधन टूटे और बाबा अंबेडकर ने संविधान के साथ साथ लिखा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों ने लैंगिक असमानता की बेड़ियां तोड़ी। इस देश की महिलाओं को 33% का आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में दिया गया। इस देश की महिलाएं 3 तलाक जैसी कुरीतियों से आजाद हुई। तब इस देश की महिलाओं ने पुरुष सत्ता से आंख मिलाते हुए कहा कि दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। महोदय, 2 अक्टूबर सन 2014 जब इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों को उनके कर्तव्यों का बोध कराते हुए स्वच्छ भारत मिशन की नींव रखी, तब पूरे विश्व ने हमारे संकल्पशीलता का वैभव देखा। महोदय, जब इस देश में सत्ता निरंकुश होने लगती है, सरकारें निरंकुश होने लगती हैं, तभी यही संवैधानिक अधिकार हमें आवाज देते हुए कहते हैं कि बोल की लब आजाद है तेरे। और इन्हीं आजाद लबों के बुनियाद पर राष्ट्रीय युवा संसद खड़ा होता है
जिसके माध्यम से इस देश की राजनीति परिवारवाद के बंधन को तोड़कर सामर्थ्यवान हाथों में जाती है। बधाई पहुंचे इस देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि 11 संकल्पों के जरिए उन्होंने गुलामी की जिस मानसिकता से आजादी की गुहार लगाई थी, हमने हंसते हंसते दोनों हाथों से उसे स्वीकार किया है। लेकिन बापू की अहिंसा से प्राप्त संविधान, शेखर की भुजाओं पर आजादी की जवानी का प्रतीक संविधान, भगत सिंह बिस्मिल के जोश और उधम सिंह के बलिदान का प्रतीक संविधान आज इस देश की आवाम से उनके कर्तव्यों की आह्वान कर रहा है। महोदय, सनद रहे कि यह संविधान मां भारती की अंचल का सबसे पवित्र ग्रंथ है, और जब जब कोई निरंकुश शक्तियां इसकी पवित्रता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करेंगी, तो फिजाओं में गूंज रही मां भारती की अंचल से एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की। जब इस देश के इस नए युग के चाणक्य ने 11 संकल्पों का संकल्प सौंपा हमें, तो यह हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम चंद्रगुप्त मौर्य बनकर उठाएं यह 11 संकल्प और पूरे विश्व के सिकंदरों को अपनी पौरुषता का एहसास कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Next up, we have Ishita Yadav. Next is Prashant Maurya. Next. Raj Singh. Next. Pratiksha Shahi. Rasi hai? Please. Check. This is Raj Singh representing the voice of Gorakhpur on the topic 11th Sankalp of Samvidhan Divas, a pledge to strengthen constitutional values. Greetings, ladies and gentlemen. From the ashes of Jallianwala Bagh to the longest written constitution of the world, from being called a subject under colonial rule to today surpassing their GDP, India is truly emerging as a Vishwaguru, a vibrant, visionary nation. From the blood, sweat and sacrifices of our freedom fighters, Bapuji, Bhagat Singh and B.R. Ambedkar, we have came and paved the way for today's proud destiny. But we need to embrace this journey by taking Sankalp to get free from the shackles of slavery mindset, Eurocentrism. It's been 75 years since we have got independence and drafted our own constitution, but we are still living in that inferiority complex, using headphones which is deafening our hearing ability, deafening the media, deafening the politicians, deafening the youth of this nation. But it cannot deafen my voice which is seeking reform. Today, why should we still follow the outdated rules of Kagaj Raj, Transfer Raj and bureaucracy brought by Britishers to suppress us? Today, we need to fix tenure for our civil servants so that good policies can be implemented at the primary level and not only on the paper level. Ladies and gentlemen, we need to take Sankalp to fulfill our duties as a youth of this nation. We need to get educated and graduate from academic university and not WhatsApp and Instagram university. We need to stop blindly believing disinformation, misinformation, fueling violences like Manipur violence, partitions. Ladies and gentlemen, we need to take Sankalp so that our scientific temper can be fostered. Why should we depend upon developed nation purchasing Rafale S-400 in this nation? Why cannot I dream that we are making our own Rafale, our own Bharatiya Antariksh Station? Today, with Make in India, we also need Make AI in India. Ladies and gentlemen, today we need women-led development. We remember B.R. Ambedkar, but we also need to remember Ramabai Ambedkar, Sushila Devi. Today, I don't know who was the first woman who was burnt alive, but whoever she was my mother. I even don't know who is the last woman who will be burnt alive, but whoever she will be my daughter. And I won't let this happen. The day each one of us stands together and think that gender-based violence is not somebody else's problem, it's our problem. Our mothers, our sisters, our daughters, it's ours. That day our women will be safe. We need to provide reservation. Why? Because centuries of sacrifices and injustices cannot be erased with decades of policy. It's time that we need to stand together and fulfill our duties and make this nation a proud nation, Shrestha Bharat and Viksit Bharat. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
Next up is Pratiksha Shahi. टूट जाए पत्थर कोई शीशा तलाश कर। मान्यवर, हमारे संविधान के निर्माताओं ने इन्हीं पंक्तियों को चरित्रार्थ करते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया था, जो आज भी सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। यदि आज हम बात कर रहे हैं संविधान के 75 वर्षों की, तो आज हम इसे 4 भागों में बांट करके इसकी बात करते हैं। पहला 1950 से 1970 तक का दौर, जो कि आधार निर्माण का था, जहां पर 1950 में संविधान ने अस्पृश्यता को खत्म किया था, जहां पर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था। उसके बाद 1961 में आए दहेज प्रतिषेध अधिनियम ने दहेज लेना और दहेज देना दोनों को एक दंडनीय अपराध बताया, जहां पर 5 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। और उसी की देन है कि गत वर्ष महिलाओं ने बिना डरे अपने खिलाफ होने वाले दहेज के 8000 से अधिक मामले बेखौफ होकर के दर्ज करवाए थे। मान्यवर, उसके बाद दूसरा दौर, जो कि 1970 से 1990 तक का था, जो कि था विकास और विस्तार का, जहां पर 1973 में केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल की नींव रखी गई थी, जो कि हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा की थी। यह हमारे संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है, जहां पर 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के मत के साथ अपना निर्णय सुनाया था। और उसी दौरान उत्तराखंड के लोगों ने अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचानते हुए चिपकू आंदोलन किया था, जो कि एक जन आधारित आंदोलन था, जिसने रेनी वन को कटाई से बचाया था। और यदि हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट देखें, तो पता चलता है कि ये वही आंदोलन है जिसने रेनी वन के वनस्पति विनाश को 50% से अधिक की दर से घटा दिया था। मान्यवर, तीसरा दौर, जो कि था 1990 से 2010 तक का, जो कि था उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का, जहां पर अनुच्छेद 19 के तहत 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर के आया गया था, जहां पर सरकार के हर एक कामकाज को जनता के हर एक नागरिकों तक पहुंचाया गया था, जिससे सरकार की जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बनाया जा सके। और उसे लागू करने के बाद आज तक 10 मिलियन से अधिक आरटीआई आवेदन किए जा चुके हैं और 70% से अधिक नागरिकों का मानना है कि इससे जवाबदेही एवं पारदर्शिता दोनों ही बेहतर हुई है। उसके बाद 2008 में आए राइट टू एजुकेशन एक्ट ने हर एक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसका एक दायित्व बना दिया, जहां पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और उसी की देन है कि 2011 की जनगणना में हमें यह पता चला कि भारत की साक्षरता दर, जो कि 1990 में 52% थी, वो 2011 में बढ़कर के 74% हो गई थी। मान्यवर, चौथा दौर, जो कि 2010 से अब तक चला आ रहा है, जो है समकालीन चुनौतियों एवं अवसर का दौर, जहां पर 2010 में नास फाउंडेशन केस में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को एक नया मोड़ दिया था, जहां पर एलजीबीटीक्यू इतिहास में इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है, जहां पर आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया था। मान्यवर, तो हो गई हमारे अधिकारों की बात कि संविधान ने हमें इतने वर्षों में क्या दिया। यदि हम बात करें दायित्वों की, तो हमारे युवा होने के नाते हमारा बहुत सारा दायित्व है। मैं आह्वान करती हूँ कि संघर्षों के सराय पर इतिहास हमारा बढ़ता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जहां पर हमारे देश में 19 करोड़ से अधिक वोटर हो, लेकिन वोटर टर्नआउट महज 65% होता है। तो हमारा दायित्व है कि हम अपने वोट का अधिकार ठीक ढंग से करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 2045 में मां भारती अपने हमारे अगले प्रतिभागी हैं दीपक कुमार पांडे। दीपक कुमार पांडे, गोरखपुर, NYK गोरखपुर, भारत के संविधान के 75 वर्ष व अधिकार कर्तव्य प्रगति के यात्रा पर अपने वक्तव्य को रख रहा हूँ। महोदय, जब आजादी के बाद संविधान के तहत जब भारत में लोकतांत्रिक संभाव, वो जातिगत संभाव, वो धर्म की विडंबनाओं के साथ एक जातीय संभाव के साथ, जहां पर 25 भाषाएं, जहां पर 1600 से ज्यादा बोलियां, जहां पर 2500 से ज्यादा जातियां, जहां पर 4500 से ज्यादा समजातियां, जहां पर 6 से ज्यादा धार्मिक संप्रदाय, अनेकता में एकता की बात करते हो, जहां पे सर्वजाति संभाव की बात करते हो, वो हमारा इस देश का महान संविधान है, जिसने जिस संविधान की बड़ाई ब्रिटिश यूके के प्रोफेसर लॉश्री ने कहा कि दुनिया को अगर देखना हो तो भारत में जाना और वहां के विश्वास, बंधुत्व और विचारधारा की बंधुत्व को देखना, और फिर आप उस उदारशीलता को आप देख सकोगे और जान पाओगे। आप जब भारत में सती प्रथा था, उस कालखंड में महिलाओं को जला दिया जाता था और
विधवा महिलाओं को उनके बालों को उखाड़कर फेंक दिया जाता था। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 243D में उन्हें 50% आरक्षण देकर मुख्य धारा में लाने का कार्य किसी ने किया तो भारतीय संविधान ने किया। चाहे वो 3 तलाक हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो या फिर वो स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया हो या फिर रूरल इंडिया फिर अर्बन इंडिया हो या फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो, सब जाति सबको एक धाव एक संभाव में जोड़ने का कार्य किसी ने किया तो भारतीय समुदाय ने किया। महोदय कि संविधान वो धारा की संलिप्तता है जहां पे प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज का सफर तय कर सकता है। हमारे यहाँ श्रीमंत कभी भी चुनाव वोट जब कभी भी चुनाव बंदूक के नोट बंदूक के चोट पर नहीं हुआ, हमेशा वीएम के वोट पर हुआ। ऑफ द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल के सम्मुखता के साथ हुआ और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक के चुनाव निष्पक्ष व निखर हुए। तब मैं कहता हूं इस भारत के संविधान की देन है। श्रीमान, हम बात तो करते हैं संवैधानिक अधिकारों की, यहाँ पे प्रत्येक बैठे हुए लोगों को बोध व शोध करना चाहिए कि जो संवैधानिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो हमारा धर्म भी बनता है कि उसकी नैतिकता को हम एक नैतिकता के साथ पालन करें, नीति नियम और नीति के साथ पालन करें। क्योंकि राजेंद्र बाबू कहा करते थे कि भारत को एक ईमानदार समूह के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं जो 100 की भावना को पीछे छोड़कर और अपने देश की भावना को आगे रखे, नेशन फर्स्ट और सेल्फ राष्ट्र की भावना को सेल्फ की भावना को पीछे रखे। यही नहीं जब आप विषमताओं की बात करेंगे तब इस देश के संविधान ने कार्य किया। जब वोटर की बात हो या फिर इस सदन की गरिमाओं की बात हो या फिर इस विधानसभा में चलने वाले किसी भी सुचारू रूप से कार्य की व्यवस्थाओं की बात हो, कर्तव्य का कार्य किसी ने किया तो भारतीय संविधान ने किया। वो मानवता के हित समर लड़ो, अपने कर्मों को तोलो तुम, हर दिन दुखी के लिए अपने दरवाजे को खोलो तुम। ओ महाराणा के वंशज तुम महाराणा सा जोश भरो, ओ महाराणा के वंशज तुम महाराणा सा जोश भरो। अंबर में दोनों हाथ उठा भारत माँ का जय घोष करो, अंबर में दोनों हाथ उठा भारत